to how we invest in mutual funds, why we invest in mutual funds सिचुएशन में एज एन इन्वेस्टर और एज एन एडवाइजर हमारा क्या रोल होना चाहिए. Investing into India. We are investing into mutual funds. We are investing into the stocks of the companies जहाँ पे growth potential बहुत है. इंडिया का potential बहुत है. कि आने वाले अगले 10 साल में what kind of strategies should be followed to invest? And one of the key thing जो मुझे लगता है जो ग्रोथ में आपकी ग्रोथ में दिखा भी है मुझे और जो आगे भी बढ़ाएगा is the trust which you create right with your investors. First thing, the entire team of K-Secure which keeps in mind is the trust. Welcome viewers. I have been putting lately a lot of stuff on my Insta page just to guide you how we invest in mutual funds, why we invest in mutual funds, what are the steps involved. And today is a very special occasion with us at K-Secure. We have our very special guest Mr. Vineet Nair here, who is the CEO for the NJ AMC. Now just to give you a very quick background, now we do NJ's distribution through the NJ's platform. That I have been talking a lot about that. Now today we have Mr. Vineet Nair from the NJ AMC. So NJ एक separate AMC भी है जहाँ जैसे हम बाकी AMCs के फंड आप लोगों को रिकमेंड करते हैं वैसे NJ के भी अपने बहुत सारे फंड्स हैं and they have been performing really good. तो आज एक मौका है जहाँ आज बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी मेरे साथ है मिस्टर विनीत नायर. तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि कुछ हम बातें इनसे भी सीख सकते हैं बहुत कुछ. तो बहुत छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट्स जो मेरे माइंड में है आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू आंसर दोस क्वेश्चन. सर वेलकम विनीत सर. Thank you so much and welcome to have me here. Thank you sir. It's a pleasure to have you at K-Secure sir. Sure. You just met my K-Secure team and you've seen sir there are a lot of very enthusiastic people. Sure. And we are growing as we planned. More than that because we are associated with NJ India and NJ India is giving us a platform where our growth is phenomenal because of the systems, the ecosystem, the app that we give to our viewers, the investors. So it has been a very wonderful journey sir. Just couple of very quick questions on the today's relevance of the market. Right. The war going on, so people are calling what's going to happen with my funds. So you've been into this business since 2003. Right. So it's a very long time sir. So I'll just take the first question very quickly sir. Just noted it down so that we can have a quick this thing. Yeah. So अभी सब लोगों का एक कॉमन माइंड में जो चल रहा है सर कि आज जो ये वॉर लाइक सिचुएशन हो रखी है. Right. सबसे पहले तो मुझे आप 2 लाइन इस पे बताएं कि इस सिचुएशन में एज एन इन्वेस्टर और एज एन एडवाइजर हमारा क्या रोल होना चाहिए. So very potent question. I think everybody is thinking about market आज टैंक हो रही है. True. Market बहुत uncertain है and because globally इतना ज़्यादा turmoil है. So I want to just add that this is not something new. If you see post-COVID, there have been situations where the money has been the markets or uncertainty has been the case. Yes. COVID में ऐसा हो गया था कि we thought this is going to be the end of the world. Everybody was inside. But look at market tanking from 42,000 to 26,000. Yes. And still you see today the market has touched 83,000, 84,000. So the people at that point of time जिन्होंने होल्ड किया पैसा, the people who actually didn't take a call, people who actually invested at the levels which were lower, Yes. has actually been made wealth 2 or 3 times, Yes. right? Yes. So what does this, why and this is happening? Because when you look at India as an opportunity is very great. Yes. Today we are in the top 5 economies of the world. तो आज growth potential बहुत है and जो uncertainty है वो Yes. uncertainty रहने वाला है. कोविड के बाद से भी uncertainty continued रहा है. Yes. So what are we think for us? We are investing into India. Yes. We are investing into mutual funds. We are investing into the stocks of the companies जहाँ पे growth potential बहुत है. इंडिया का Yes. potential बहुत है. Yes. तो मेरा एक ही एडवाइस रहेगा कि ये जहाँ पे भी अब global uncertainty चल रही है, we have to focus for our long term goal. Yes. And we have to continue to invest. And I think control the emotion bias and stay put. Having said this, एक दूसरा जो बहुत मेजर कंसर्न जी. जो बार आ रहा है सर, इतनी सारी AMCs हो गई हैं. हाँ.
मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस रील्स डालता हूँ, तो मुझे कई बार कॉल आते हैं कि आपने बोला कि आप HDFC में अपना पैसा लगा दीजिए या अपनी ICICI में पैसा लगा दीजिए, है ना, इसमें NJ का भी हम बहुत आजकल प्रमोट करते हैं। तो जब एक बेसिक चीज़ जो आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ, हाउ डू यू एक्चुअली सेलेक्ट एन AMC सर? कैसे, किस पैरामीटर पे हम ये डिसाइड करें कि मुझे अपना पैसा SIP या लमसम के थ्रू जो है वो HDFC में डालना चाहिए, NJ में डालना चाहिए, फ्रैंकलिन में डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए सर? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। I'm sure sir, because you represent so I think some of the AMCs you mentioned I've worked also. So essentially when you look at पहला हमारा इन्वेस्टर का होराइजन क्या होना चाहिए? आई थिंक इन्वेस्टर्स होराइजन शुड बी गोल बेस्ड। व्हेन ही इज लुकिंग एट अ गोल बेस्ड, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो मार्केट ने जो रिटर्न दिया है, बहुत सारी AMCs ने पहले भी और अभी भी है बहुत अच्छा काम किया है, पैसा बनाया, वेल्थ क्रिएट करी। मार्केट ने अगर 15% वेल्थ क्रिएट करी है तो एक्टिव वेल्थ मैनेजर ने उससे बीट भी किया है, तो वेल्थ बनी है। कभी कम थोड़ा ज्यादा, बट अगर हम लॉन्गर टर्म देखेंगे विच इज 10 years और प्लस, एटलीस्ट आप देखोगे कि मार्केट से बेटर रिटर्न दिया है और वेल्थ क्रिएट हुई है। तो अगर आप कोई AMC भी सेलेक्ट करते हो, दैट AMC शुड हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, AMC ने काम अच्छा किया, आपको पता है वो कैसे, उनका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस पे अगर काम कर रहे हैं, ट्रस्ट उन्होंने है कि भाई वो काम सही कर रहे हैं। आई थिंक वो चीजें आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू समझेगा पॉसिबल, बिकॉज वो उनके साथ डील करते हैं। NJ की बात करूँ तो वेरी ट्रांसपेरेंट, बट एज यू मेंशन्ड सम ऑफ द AMC हैव आल्सो वर्क। सो आई थिंक जब हम ये देखते हैं तो वहां पे आपका जो अगर लॉन्गर टर्म गोल रहता है तो आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा रहेगा, रादर देन सिलेक्शन ऑफ AMC बिकम्स इंपॉर्टेंट, बट योर होराइजन इन द इन्वेस्टमेंट जर्नी इज वेरी क्रिटिकल फॉर क्रिएटिंग योर वेल्थ। थैंक यू सो मच सर, दिस आंसर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टेल माय व्यूअर्स। क्योंकि क्या है कि AMC कोई भी हो, अगर आप लंबे टाइम तक टिकते हैं उस AMC के अंदर, उस फंड के अंदर, तो ही पैसा बनता है, अदरवाइज AMC XYZ कोई भी होगी, पैसा आप नहीं बना सकते इसके अंदर। थैंक यू सो मच सर। नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में लॉन्च हो रहे हैं सर, तो एक छोटा सा मुझे इस पे आप इंसाइट दीजिए कि आने वाले अगले 10 साल में, नेक्स्ट 10 years, वुड इट बी अ टाइम फॉर द पैसिव फंड्स, फैक्टर स्ट्रेटजीज, और किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके चलने के या उसके रिटर्न बनाने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे सर, एस्पेशली बिकॉज NJ AMC वर्क्स ऑन रूल्स, वी से वी बिल्ट ऑन रूल्स, तो उसको अगर माइंड में रखते हुए मुझे बताइए सर, नेक्स्ट 10 years व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज शुड बी फॉलोड टू इन्वेस्ट? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, बिकॉज आज आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से व्हाई NJ AMC इज डूइंग रूल बेस्ड, बिकॉज NJ AMC ने ये जो आज हमने देखा व्हेन वी स्टार्टेड द AMC, तो वी थॉट कि विल डू बी द नेक्स्ट अदर AMC इज डूइंग एक्टिव बिजनेस, या ग्लोबली क्या हो रहा है। सो आई वांट टू टॉक अबाउट ग्लोबल नाउ। इफ यू लुक एट ग्लोबली, हमने देखा कि जब डेटा बहुत देखा तो US एज अ इकोनॉमी, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, देयर वी सॉ दैट इन द लास्ट 2000 onwards till 2025 now, from zero to $2.8 trillion have gone into the rule-based smart beta products. और वो ऐसा क्यों हुआ है कि पैसा का फंड फ्लो उसी में ज्यादा अभी आ रहा है ऑफ लेट भी, बिकॉज एक्टिव फंड्स हैव बीन डिफिकल्ट टू बीट द बेंचमार्क ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो ये वहां पे हमने ऑलरेडी देखा, इसीलिए ऑब्वियसली पैसा भी उसमें आ रहा है। बट वो स्ट्रैटेजीज, बिकॉज आज आप देखोगे तो बहुत जो मार्केट में न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज जो हम कहते हैं, दैट हैज रिड्यूस्ड ओवर द पीरियड, वहाँ देख लिया है। अभी इंडिया में ऑब्वियसली एक्टिव फंड मैनेजर्स हैव रियली क्रिएटेड अ गुड वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. We have come with that strategy. We think this is the future and we are focusing only on rule based, and we were the first fund house to do that. We continue to work on rules. तो बाकी आज जो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज नहीं है, तब भी रूल से हम डिसीजन मेकिंग सही कर पाए. इतना वॉलेटिलिटी है मार्केट में, अनसर्टेनिटी बहुत है. आई थिंक अनसर्टेनिटी इज द न्यू नॉर्मल, राइट? तो उस केस में डिसीजन मेकिंग एज अ फंड मैनेजर, एज अ फंड हाउस, एज अ इंडिविजुअल, बिकॉज फंड मैनेजर्स कॉल लेते हैं कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक. बिल्कुल उस केस में यहाँ पे रूल्स के बेसिस पे जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट के, तो बायस निकल जाता है. एंड आई थिंक दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ स्टेड कि जब हम वो कॉल ले रहे हैं तो वो कॉल बायस के बिना है और डेटाबेस साइंटिफिक है, और उसके बेसिस पे जो हम सिलेक्शन करते हैं, दैट इज बिकम्स वेरी मीनिंगफुल. तो आज इंडिया में ये चलना शुरू हुआ है. आई थिंक सम ऑफ द लॉट ऑफ AMCs हैव कम अप 1 or 2 products. वी आर ओनली डूइंग इट. तो नाउ आंसर अ लॉन्गर टर्म क्वेश्चन की 10 years और सो हम क्या देख रहे हैं. आई थिंक मुझे लगता है जिस हिसाब से AI का बूम आया है, द टेक्नोलॉजी इतनी रैपिड फेस पे चेंज हो रही है. आई थिंक व्हेन यू विल सी दैट इन अ शॉर्टर टाइम टू 10 years, आई थिंक अ लॉट ऑफ फंड हाउसेस विल लुक एट कि इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज ड्राई अप हो रहा है. तो रूल बेस्ड प्रोडक्ट्स का मुझे लगता है कि फोकस आएगा. एंड इन्वेस्टर टुडे एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, यू शुड ऑलवेज टेल इन्वेस्टर टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दैट. So I think that is something which I can say. Absolutely. So instead of right away putting all the money, at least take some exposure into this kind of investing also. Yes.
एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग के ऊपर एक सेपरेटली मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। जी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। जो सर ने जितनी स्ट्रैटेजीज की बात करी है उसको मैं थोड़ा डिटेल में उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। नाउ कमिंग टू द maybe one last question, sir. From a mutual fund distributor, now K-Secure as a company, we are trying to upgrade ourselves because our customers have a lot of demands, aspirations from us. Right. So they not only want a mutual fund distribution thing from us, they want a full-fledged wealth management solution. So मैं आपसे एक छोटा सा और एडवाइस चाहता हूँ सर इसके ऊपर भी Sure. कि if we want to really set up K-Secure as a full-fledged wealth management company in our region. So what advice do you give us, sir, so that we just keep track and we grow from insurance broker or a mutual fund distributor to a complete wealth management firm? Well, fantastic. I think first thing I would like to say that you have done phenomenally well in the last 5 years to Thank reach you. where you have reached. Yes, thank I you, think sir. this has been what I can see. ये जो growth है, it cannot come without you contributing to investors and people's either the wealth journey or insurance journey. I understand you started insurance, फिर आपने mutual fund में Absolutely, किया sir. है. जी. So अभी I think you are on the right track from that perspective, but the growth है वो ग्रोथ अगर हमें और ज़्यादा स्नोबॉलिंग इफेक्ट में करना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फिटर्निटी, आई थिंक इट हैज़ टू बी अ फुल सूट विच यू ऑफर. तो आप जब ऑफरिंग अपनी बढ़ा रहे हो, बिकॉज आज हर इन्वेस्टर को सब कुछ चाहिए जी. आपके पास वन स्टॉप शॉप चाहिए, लाइक अ ब्लिंकिट, लाइक अ स्विगी, यू वांट एवरीथिंग. जैसे मैं एग्जांपल आपसे बात कर रहा था कि आज मेडिसिन भी अवेलेबल है, सो पीपल तो पीपल कैन. सो व्हेन आई एम सेइंग दिस व्हिच मींस आपको अगर वो ऑफरिंग बढ़ानी है तो आपका जो टीम साइज है, वो नॉलेज बेस, वो ऑफरिंग आप रखोगे ताकि कोई इन्वेस्टर अगर आपके पास लेके आ रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो yes, you should have that capability to do. I think that will have a very very value addition effect. Now comes the part कि आप वो होता ना, will do invest into before or you want to keep. So I think idea is about gradual steps but firm steps. And one of the key thing जो मुझे लगता है जो ग्रोथ में आपकी ग्रोथ में दिखा भी है मुझे, जो आगे भी बढ़ाएगा, इज द ट्रस्ट विच यू क्रिएट राइट विद योर इन्वेस्टर्स. आप उनको डिफरेंस दे रहे हो, आप उनको सही एडवाइस दे रहे हो, तो दे विल अंडरस्टैंड, एंड वंस दे अंडरस्टैंड दे विल कंटिन्यू फॉर योर लाइफ, राइट. आई थिंक दैट विल क्रिएट योर सोल्यूशन. अगर आपके पास सारे सोल्यूशंस हैं और जो ग्रेजुअली आपको बिल्ड करने चाहिए, आई थिंक दैट इज वेयर दिस होल transformation happen and then it will become a big firm. आपने moral of the story बता दिया सर. One thing which you said is the trust, Right. that has always been our first thing on our mind whenever we advise even on insurance or on mutual funds. First thing the entire team of K-Secure which keeps in mind is the trust, that if a person comes to me, he comes with 100% thing in mind that okay, I'm going to K-Secure where I will get the absolutely honest advice. और एक दूसरी आपने बहुत रेलेवेंट बात की सर कि ग्रेजुअली वी शुड ट्राई एंड स्केल अप. सो टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय इन्वेस्टर्स, आई रिमेंबर द टाइम्स ऑफ 2021 व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड एडवाइजरी इनटू द म्यूचुअल फंड बिजनेस. बहुत धीरे धीरे सर हमने स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड विद कपल ऑफ SIPs of 1,000, 5,000, 10,000, and now the kind of products that we have added into the kitty, we are doing PMS, we are doing AIF. Wow. We are moving towards the GIFT City also now, sir. Yeah. As you rightly pointed out, sir, this is the growth journey we have designed for ourselves. Right. And I think in the next 5 to 10 years of time, K-Secure is going to be a brand in honest advisory into all the wealth management financial products that we have, sir. Vineet sir, it was a pleasure talking to you, and I look forward to meeting you again and again, because this meeting has clarified to not only to me, to my team also when we were interacting. Right. It was a great interacting with you, sir, and I do look forward to visit NJ's AMC's head office also sometimes. Sure. Because when I visited Surat's NJ's office, right. So I went live and I showed all my viewers, and that created a lot of trust. Wow. For my viewers and investors as well. Wow. So thank you so much, sir, for sparing time today and talking about on some very very relevant points, sir. Pleasure is mine, and thank you so much for having here. All the best to you, and really namaste to all the users. Thank you so much. Thank you. Have a nice day.